Welcome students. Now we are at the last video of this chapter, life process, class 10 biology. You are with Biswajit. Today we are going to talk about excretion, how it happens inside our body and what is it actually. Excretion is the process of removal of harmful metabolic waste from the body. Okay, so inside our body, numerous metabolic reactions are going on, like anabolic reaction, catabolic reaction. जैसे कि रेस्पिरेशन के समय कितने सारे रिएक्शन होता है, न्यूट्रिशन के समय कितने सारे रिएक्शंस होता है. तो ड्यूरिंग ऑल काइंड ऑफ रिएक्शंस आवर सेल्स प्रोड्यूस फ्यू हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट. जैसे कि अगर एक घर में बहुत ज़्यादा दिन तक तुम रहोगे तो और घर अपना जो यूज़ किया हुआ सामान जो कचरा है वो घर पे ही फेंकोगे तो घर रहने लायक होगा. तो इसी तरह से सेल के अंदर जो एक्टिविटीज़ होता है उसमें बहुत सारे कचरा प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग मेटाबॉलिक वेस्ट बोलते हैं. उस वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर फेंकना है, नहीं तो सेल डैमेज हो जाएगा या तो क्या हो सकता है, ऑर्गेनिज्म का मौत भी हो सकता है. दैट्स वाई वी नीड a particular life process, that is excretion, through which we will remove the harmful metabolic waste from each and every cells of our body. Now, accumulation of those cells, those harmful metabolic waste can cause damage of tissue. Even they can be lethal for the organism, means they can cause death. Human being is a urotelic organism because the main metabolic waste or excreta is urea. तो अब हम लोगों का जो metabolic waste product होता है उसको हम लोग कहते हैं excreta. ओके, तो हम लोगों का मेन जो excreta होता है, मेन जो metabolic waste product होता है, that is urea, and that is why we are known as urotelic animals. Animals who produce urea as their primary or main excreta, they are known as urotelic organisms. यूरिया छोड़ के भी अपार्ट फ्रॉम यूरिया वी प्रोड्यूस एमोनिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, बिलिरुबिन, बिलीवर्डिन, कार्बन डाइऑक्साइड एज आवर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड वी एलिमिनेट आउट दोज थिंग्स फ्रॉम आवर बॉडी. According to the type of excreta an animal is producing, okay, and based on that animals are divided into three groups. They are urotelic, ammonotelic and uricotelic. जो एनिमल्स का मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया होता है, दे आर नोन एज यूरोटेलिक, जैसे ह्यूमन बीइंग. एमोनोटेलिक, जिन लोगों का मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एमोनिया होता है, दे आर नोन एज एमोनोटेलिक. एंड द एनिमल्स whose main excretory product is uric acid, they are known as uricotelic. Okay, ammonotelic कौन होता है, जैसे कि फिश, frogs, they are ammonotelic in nature. Urotelic, reptiles, birds, they are uricotelic in nature because their main excretory product is uric acid. Now we'll move further. We'll study about our excretory system. Human excretory system includes a pair of kidneys, pair of ureters, किडनी से निकला हुआ जो पाइप उसको कहते हैं यूरेटस, यूरिनरी ब्लडर जिसमें स्टोर होता है यूरिन, और अल्टीमेटली यूरेथ्रा यानी कि यूरिनरी ब्लडर का जो पोर्शन है, यूरिनरी का ब्लडर का जो जिस पोर्शन से यूरिन बाहर निकल जाएगा, ठीक है, उस पोर्शन को कहा जाता है यूरेथ्रा. सो आवर excretory system is made up of two kidneys, two ureter, one urinary bladder and a common passage to excrete out urine, that is urethra. और किडनी में जो ब्लड सर्कुलेशन, किडनी में ब्लड सप्लाई जो मिलता है ब्लड वेसल्स के द्वारा, दे आर रेनल आर्टरी एंड रेनल वेन्स. रेनल आर्टरी से क्या होता है, किडनी में ब्लड एंट्री लेता है और रेनल वेल से किडनी से बाहर ब्लड चल जाता है. Now we study the process of excretion. Renal artery bring in blood
containing waste substance to the kidney। तो renal artery के थ्रू जो blood किडनी में एंट्री ले रहा है उसमें क्या है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो है लेकिन उसमें बहुत सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जो किडनी में प्यूरिफाई करना होगा। When blood enters in the kidney, kidney filters the blood। उसके लिए किडनी का रेस्पिरेटरी एक्सक्रीटरी यूनिट होता है, फिल्ट्रेशन यूनिट होता है जिसको हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं, जिसको बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। Inside the kidney, urine is produced and passes through the ureters into the urinary bladder where it is stored until it is released through the urethra। अब किडनी में यूरिन प्रोड्यूस हुआ, इस पाइप के थ्रू यूरेटर पाइप के थ्रू इसको भेज दिया गया यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर एक सैक होता है, इसमें यूरिन स्टोर होते रहता है और जैसे ही वन थर्ड जैसे फुलफिल हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर, क्या होता है हम लोग यूरिनेशन का आर्ट से जागता है, यानी कि हम लोगों को तब टॉयलेट जाना पड़ता है एंड यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन को बाहर एलिमिनेट या रिमूव कर दिया जाता है। हियर वी कैन सी दिस इज अ स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम। यहाँ पे दिखाया गया है कि हम लोग का शरीर में कहाँ पे किडनी होता है। ओके, लोअर एब्डोमिनल कैविटी में हम लोगों का किडनी, दो किडनी प्रेजेंट है, लेफ्ट किडनी और राइट किडनी। ओके, यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों किडनी बिल्कुल बराबर में नहीं है, जो एक किडनी दूसरा किडनी से ऊपर है, ये जो है हम लोगों का ये लेफ्ट किडनी है, ये राइट किडनी है, राइट किडनी और लेफ्ट किडनी, यानी कि लेफ्ट किडनी जो है ये राइट किडनी से थोड़ा सा ऊपर है, स्लाइटली ऊपर में होता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द पोजीशन ऑफ आवर लीवर, हम लोग का लीवर का शेप हम लोग अगर देखेंगे तो इस तरह का कुछ शेप होता है लीवर का, है ना। तो इधर लीवर ज़्यादा ऑक्यूपाई करके रखा है, इधर कम ऑक्यूपाई करके रखा है जगह, इसीलिए क्या होता है ये वाला किडनी थोड़ा सा नीचे आ जाता है और ये वाला किडनी थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। अंडरस्टूड? आई एम मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। नाउ स्टडी डिटेल अबाउट द किडनी। We have two kidneys which are bean shaped। सीम का जो बिया होता है या जिसको हम लोग बीन्स बोलते हैं, किडनी बीन्स, क्योंकि उसका बीन्स का जो शेप होता है वो किडनी जैसा होता है, इसलिए उसको किडनी बीन्स भी बोलते हैं। तो हम सब्जी की तरह खाते हैं, लेकिन उस तरह का शेप होता है हम लोगों का किडनी का, देख पा रहे हैं यहाँ पे हम लोग। ओके, द शेप ऑफ किडनी जस्ट लाइक अ बीन सीड। दे आर लोकेटेड on the left and right in the retroperitoneal space protected by pelvic bones। in adult humans are about 12 centimeters and 4.7 inch in length। यानी कि ये जो लोअर एब्डोमेन पोजीशन में जिस जगह में हम लोग पिछले साइड में देखे हैं कि जिस जगह में किडनी प्रेजेंट रहता है उस जगह को कहा जाता है रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस, जो कि थोड़ा सा नीचे पेल्विक बोन या पेल्विक गर्डल से प्रोटेक्टेड रहता है। अब किडनी में जो आसिमेट्री देखने को मिला है, यानी कि थोड़ा ऊपर नीचे, द आसिमेट्री विद इन द एब्डोमिनल कैविटी caused by the position of liver typically results in the right kidney being slightly lower and smaller than the left। यानी कि राइट किडनी थोड़ा सा नीचे होता है लेफ्ट किडनी से और साइज में भी थोड़ा सा छोटा होता है। एवरेज वेट ऑफ किडनी is 108 gram। अब it may vary from like age wise और gender wise, जैसे कि फीमेल में थोड़ा कम होगा, मेल में थोड़ा ज़्यादा होगा। Now we will talk about outer covering of kidney। लोअर एब्डोमिनल कैविटी में तो किडनी रहता है, when we are running और when we are fighting तो किडनी शेक हो सकता है, किडनी में जार्किंग हो सकता है। ओके, इसकी वजह से किडनी में डैमेज भी हो सकता है। किडनी को डैमेज से प्रोटेक्शन देने के लिए किडनी बाहर से एक प्रोटेक्टिव कवरिंग से ढका हुआ रहता है, कवर्ड रहता है, जिसको कहा जाता है कैप्सूल। ओके, सो कैप्सूल इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ किडनीज। Kidneys, they receive blood from the paired renal arteries। Blood exit into the paired renal veins। ओके, रेनल आर्टरी से ब्लड एंट्री लेता है किडनी में और रेनल वेन से ब्लड एग्जिट करता है किडनी से बाहर। ओके, यानी कि रेनल आर्टरी में जो ब्लड आ रहा है उसमें एक्सक्रीटर प्रोडक्ट रहता है, तो एक्सक्रीटर को इधर फिल्टराइज किया जा रहा है
और फिल्टर्ड ब्लड को वेन से बाहर छोड़ दिया जाता है। Each kidney is attached to a ureter, a tube that carries excretory, that is urine, to the bladder. किडनी के साथ एक पाइपलाइन जुड़ा हुआ है जिसको हम लोग यूरेटर बोलते हैं। यूरेटर किडनी से प्यूरिफाइड ब्लड यानी कि जो एक्सक्रीटा है जो कि यूरिन में कन्वर्ट किया गया है उस यूरिन को कैरी करके ले जाता है अल्टीमेटली ब्लडर में। Each human adult kidney contains around 1 million nephrons. These are the structural and functional units of kidney, यानी कि जहाँ पे ब्लड फिल्ट्रेशन, ब्लड को फिल्टर किया जाएगा। ओके, द प्लेस ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, दे आर नोन एज nephrons, and each kidney contains near about 1 million of nephrons. Here with this animation we can see it said that किडनी इज प्यूरिफाइंग ब्लड, मीन्स कि ब्लड से ये एक्सक्रीटा को सेपरेट कर रहा है किडनी, और क्या वन एक्सक्रीटा को डाइल्यूट करके बनाया जा रहा है यूरिन। We will study about the structure of nephron. They are the filtration unit or the structural and functional unit of kidneys. The filtration जहाँ पे होता है, filtration इस पोर्शन में होता है। ओके, इस पोर्शन को कहा जाता है Malthusian body। किडनी का इस पोर्शन को कहा जाता है, दिस इज द स्टार्टिंग पोर्शन ऑफ किडनी, दे आर नोन एज Malthusian body। Malthusian body दो चीज़ से बना होता है, एक कप जैसे स्ट्रक्चर, एक कप लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है बोमेंस कैप्सूल, और एक कप लाइक स्ट्रक्चर में जो ब्लड वेसल का एक गुच्छा है, टफ्ट ऑफ ब्लड वेसल, जो कि फिल्टर का काम करेगा, जो कि छन्नी का काम करेगा, उसको कहा जाता है ग्लोमेरुलस। ओके, सो द स्टार्टिंग पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन इज मेड अप ऑफ ग्लोमेरुलस एंड बोमेंस कैप्सूल। टुगेदर दे विल हेल्प इन द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। क्या होता है, ग्लोमेरुलस का एफरेंट आर्टरी से ब्लड एंट्री होता है ग्लोमेरुलस में। अब ये जो पोर्शन देख रहे हैं टॉप ब्लड कैपिलरीज, ये छन्नी जैसा काम करता है, एक्टिंग एज ए फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ नेफ्रॉन। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ब्लड से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को सेपरेट किया जा रहा है, और सेपरेट करके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को भेज दिया जा रहा है बोमेंस कैप्सूल के अंदर। जो फिल्टर्ड ब्लड है वो फिर से इफरेंट आर्टेरियल के थ्रू नेफ्रॉन से बाहर चला जा रहा है। ओके, अब बोमेंस कैप्सूल से स्टार्ट होता है किडनी का पाइपलाइन, सॉरी नॉट किडनी, नेफ्रॉन का पाइपलाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं रेनल ट्यूब्यूल। ओके, नेफ्रॉन का जो पाइपलाइन जहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन होगा उस चीज़ को कहा जाता है रेनल ट्यूब्यूल। तो ब्लड फिल्ट्रेशन तो हो गया बोमेंस कैप्सूल में, क्योंकि बोमेंस कैप्सूल में बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस का जो जंक्शन है ब्लड फिल्ट्रेशन हो गया, यानी कि ब्लड से एक्सक्रीटा को छान लिया गया। नाउ दिस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट विल ट्रैवल और प्रोग्रेस फॉरवर्ड थ्रू द रेनल ट्यूब्यूल। रेनल ट्यूब्यूल का 3 पोर्शन होता है। बोमेंस कैप्सूल का नज़दीकी जो पोर्शन है रेनल ट्यूब्यूल का, उसको कहा जाता है प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। बोमेंस कैप्सूल से दूर में जो रेनल ट्यूब्यूल का जो पोर्शन है उसको कहा जाता है डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। ओके, एंड दिस यू शेप्ड पोर्शन of renal tubule is known as the loop of Henle. So there are 3 portion of this pipe of renal tubule. अब renal tubule के अंदर से इनर वॉल में क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस चलते रहता है। यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, जैसे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जैसे आगे बढ़ता है रेनल ट्यूब्यूल से, रेनल ट्यूब्यूल का इनर वॉल जो है उसके साथ वाटर मिक्स करता है। ओके, रेनल ट्यूब्यूल के इनर वॉल का जो सेल्स है वाटर को रिलीज करता रहता है और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को डाइल्यूट करके एक सॉल्यूशन बनाता है जिसको हम लोग यूरिन बोलते हैं। अब यूरिन फॉर्मेशन एक हार्मोन से कंट्रोल होता है, यानी कि यूरिन कितना डाइल्यूटेड होगा, कितना वाटर कंसंट्रेशन उसमें होना चाहिए, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय अ हार्मोन नेम्स ADH हार्मोन, एंड वेसोप्रेसिन। ADH हार्मोन एक हाइपोथैलेमस का एक हार्मोन है जिसका नाम है वेसोप्रेसिन। ओके, इसको अगर एब्रीविएट करें तो एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम वेसोप्रेसिन, जो कि हाइपोथैलेमस का एक हार्मोन है जो रेगुलेट करता है यूरिन फॉर्मेशन।
एडीएच का अगर कमी हो जाएगा, हाइपोसिक्रेशन ऑफ एडीएच में कॉज डायबिटीज़। ओके, तो ये एक डायबिटीज़ होता है इंसुलिन के वजह से, यहाँ पे ब्लड शुगर लेवल बढ़ते जाता है, लेकिन ये जो डायबिटीज़ होता है एडीएच की कमी की वजह से यहाँ पे इसके साथ क्या होता है, ब्लड शुगर का कोई उतना लेना देना नहीं। इसमें क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन ज़्यादा मात्रा में होता है, यूरिन ज़्यादा डाइल्यूटेड होता है, इसलिए तुरंत यूरिनेशन का आर्ज लगता है। तो इसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंटली जो पेशेंट है उसको यूरिनेशन करना पड़ता है। अब मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ये 4 स्टेप में होता है यूरिन फॉर्मेशन। पहले क्या होता है, 4 स्टेप में हो रहा है। पहला स्टेप है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या हो रहा है, ब्लड इज फिल्टर्ड from the glomerulus into Bowman's capsule of the nephron. This filter passes through the tubules of the nephron. यानी कि जो ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल का जो जंक्शन है वहाँ ब्लड को पहले फिल्टर किया गया, यानी कि एक्सक्रीटा को सेपरेट किया गया, उस प्रोसेस को कहेंगे हम लोग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। सेकेंड वन इज ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। नाउ यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द filtrate like glucose amino acids are reabsorbed by the capillaries surrounding the nephron into the blood. अब जो एक्सक्रीटा को जो सेपरेट किया गया उसमें अगर फर्दर कुछ रिक्वायर्ड मटेरियल उसमें है जो कि बॉडी अपना काम में लगा सकता है, दोस रिक्वायर्ड मटेरियल्स लाइक ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड विल बी reabsorbed through the inner wall of the renal tubule. Okay, then secretion, urea, extra water and salts are secreted into the tubule which open up into the collecting duct, then into the ureter. अब क्या किया गया, यूरिन फॉर्मेशन हो गया, यूरिन फॉर्मेशन के बाद क्या होगा, उसको रेनल ट्यूब्यूल से उसको फेंक दिया जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट क्या था, रेनल ट्यूब्यूल का जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब खत्म हुआ था वहाँ पे एक कॉमन पैसेज है, मतलब अलग अलग किडनी का डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आके यहाँ पे मिल रहा है, जो एक ड्रेनेज सिस्टम बना रहा है, जो कि ये जो नेफ्रॉन के द्वारा जो यूरिन फॉर्मेशन हुआ उसको कैरी करके अल्टीमेटली ले जाएगा ये यूरेटर के पास। ओके, नाउ सिक्रेशन, फर्स्ट स्टेप इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जहाँ पे ब्लड को फिल्टर किया गया। सेकेंड स्टेप ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, जहाँ पे किया गया यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है और फिर से यूरिन फॉर्मेशन के बाद रिक्वायर्ड मटेरियल को रीअब्जॉर्ब किया जा रहा है जो रेगुलेट कर रहा है एडीएच हार्मोन। तीसरा स्टेप है सिक्रेशन, यानी कि यूरिन फॉर्मेशन होने के बाद उसको भेज दिया जा रहा है कलेक्टिंग डक्ट। ओके, उसके बाद सिक्रेशन के बाद फोर्थ स्टेप में क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट कलेक्ट करता है अलग अलग नेफ्रॉन का प्रोडक्ट को, यानी कि यूरिन को। नेफ्रॉन अलग अलग नेफ्रॉन से यूरिन को कलेक्ट करके उसको भेज देगा अल्टीमेटली यूरेटर के पास, और यूरेटर के थ्रू यूरेटर पाइप से वो जाके जमा हो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में। हियर वी कैन सी, यहाँ पे ग्लोमेरुलस दिखाया गया है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कैसे हो रहा है, ब्लड एंट्री हो रहा है। यहाँ पे ग्लोमेरुलस का जो टप ब्लड वेसल्स उसमें वो छन्नी जैसा काम कर रहा है और ब्लड से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को सेपरेट करके बोमेंस कैप्सूल में चैनलाइज कर रहा है। Now, hemodialysis, the process of purifying blood by an artificial kidney. It is meant for kidney failure patient. कोई लोगों में क्या होता है, किडनी खराब हो जाता है, यानी कि नेफ्रॉन धीरे धीरे डैमेज होने लगता है, नेफ्रॉन अपना एक्टिविटी खो बैठता है। देन व्हाट विल हैपन टू देम, अगर शरीर से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिलीज नहीं करवाया जाएगा तो पेशेंट विल डाई वेरी सुन। दैट इज व्हाई द पेशेंट नीड्स टू गो थ्रू अ प्रोसेस नेम हीमोडायलिसिस, जिसमें इसमें आर्टिफिशियली ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है बॉडी से बाहर। ओके, ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस योर ब्लड गोज थ्रू ए फिल्टर कॉल्ड डायलाइजर आउटसाइड योर बॉडी। अ डायलाइजर इज समटाइम्स कॉल्ड द आर्टिफिशियल किडनी। यहाँ पे देखो, हम लोग का बॉडी में आर्टरी और वेन के साथ चैनल पाइपलाइन लगा दिया गया है ब्लड को एंट्री और एग्जिट करवाने के लिए।
आर्टरी के थ्रू ये ब्लड जाएगा हीमोडायलिजर मशीन में। डायलिजर मशीन किडनी जैसा काम करता है, यानी कि ब्लड से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को सेपरेट कर रहा है। उसके बाद फिर से हम लोग दूसरे पाइपलाइन, दूसरा चैनल लगा दे रहे हैं हम लोग का वेन के साथ, जैसे किडनी में हो रहा है। तो किडनी का जो सेटअप है वो हम लोग आर्टरी और वेन्स के थ्रू कनेक्ट करके बॉडी से बाहर बना रहे हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है हीमोडायलिसिस और मशीन का नाम है डायलाइजर। नाउ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स का डिफरेंट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, लेकिन प्लांट का कोई पर्टिकुलर एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता है या एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है, इसलिए वो लोग अलग अलग मेथड फॉलो अप करते हैं। जैसे कि फोटोसिंथेसिस के समय उन लोगों का एक्सक्रीटा होता है ऑक्सीजन, जो कि स्टोमाटा के थ्रू रिलीज कर दिया जाता है। H2O एक्सेस वाटर ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में उन लोगों का बॉडी से रिलीज कर दिया जाता है वाटर वेपर के फॉर्म में थ्रू स्टोमाटा। और वेस्ट मे बी स्टोर्ड इन फ्रूट, लीव्स, बार्क एटसेट्रा विच फॉल ऑफ फ्रॉम द प्लांट। हम लोग देखते हैं कि फल पक गया है, पत्ता झड़ जा रहा है, या प्लांट का जो बाहरी जो हिस्सा है, बार्क जिसको हम लोग बोलते हैं, बाहरी खाल, वो भी अपने आप लूज होके गिर जाता है, शेड आउट हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि प्लांट के पास तो अपना कोई पर्टिकुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है, इसलिए वो लोग अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को अपना फ्रूट में या लीव्स में या तो अपना जो स्किन में स्टोर करते रहता है। और जैसे वो लोग मैच्योर हो जाता है, वो लोग फेंक दिया जाता है प्लांट से, और उसके साथ साथ एक काम में दो काम ही लोगों को हो रहा है। मैच्योर यानी कि बूढ़े जो हो गए, जो एजड जो लीव्स या जो पका हुआ राइपेंड जो फ्रूट है उसको भी फेंक दे रहा है प्लांट, उसके साथ साथ एक्सक्रीटा को भी फेंका जा रहा है। अल्टीमेटली तुम जो यानी कि तुम जो पका हुआ फल खा रहे हो उसके साथ प्लांट का एक्सक्रीटा खा रहे हो, सोचो। वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर्ड एज गम्स, रेजिन एंड लैटेक्स इन ओल्ड जाइलेम। या तो क्या हो सकता है, प्लांट का जो वास्कुलर टिश्यू है जाइलेम, उसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट गाम के फॉर्म में या रेजिन के फॉर्म में या लैटेक्स के फॉर्म में स्टोर्ड होता है। गाम क्या होता है? जैसे कि रबर। ओके, रबर प्लांट में रबर एक एक्सक्रीटा होता है। फिर कुछ प्लांट्स को अगर जैसे कि ब्रांच को तोड़ दिए या लीफ को तोड़ दिए, उसके बाद उस समय वहाँ पे एक मिल्की फ्लूइड, वाइटिश फ्लूइड निकलते रहता है। कुछ प्लांट में देखते हो, दैट इज कॉल्ड लैटेक्स, वो भी प्लांट का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। प्लांट एक्सक्रीट सम वेस्ट इनटू सॉइल अराउंड देम, अपना रूट के थ्रू भी, रूट का जो आउटर सरफेस, ओके, उसके थ्रू भी रिलीज कर सकता है कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। और अल्कोलॉइड्स लाइक मॉर्फिन, क्विनाइन, निकोटीन, कैफाइन, टैनिन, these are also excreta of plant। ओके, यानी कि प्लांट का जो एक्सक्रीटा है, जैसे कि जिसको हम लोग अल्कोलॉइड्स बोलते हैं, ओके, इस अल्कोलॉइड्स हम लोगों के लिए नार्कोटिक्स का भी काम करता है और ड्रग का भी काम करता है, मेडिसिन का भी काम करता है। जैसे कि मॉर्फिन, क्विनाइन, ये सब मेडिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है। ओके, क्विनाइन मलेरिया में यूज़ हो रहा है। इवन कोरोना वायरस का ट्रीटमेंट के लिए भी जो क्लोरोक्विन यूज़ हो रहा है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, वो भी क्विनाइन का ही एक फॉर्म है। इसके साथ हम लोग जब सिगरेट पिया जाता है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कंजप्शन ऑफ सिगरेट एंड बीडीज और टोबाकोस, निकोटीन इज कंज्यूम्ड, दैट इज ऑल्सो अल्कोलॉइड ऑफ प्लांट। कॉफ़ी में कैफाइन होता है एंड टी में टैनिन होता है, जो कि टी और कॉफ़ी प्लांट का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। ओके, सो प्लांट्स एक्चुअली दे follows different types, different process to excrete their product, because they don't have particular excretory organ or excretory system. Thank you. This is the end of the chapter, that is life process.